السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الثلاث 26 ذی الحجہ 1443 ہجری۔ آج منگل کا دن ہے، جولائی کی 26 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ توبہ آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ، انہیں عذاب دے گا اللہ، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیَخْزِیہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وَینصُرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان پر، وَیشفی صدور، اور شفا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا دلوں کو، قوم مومنین، مومنوں کے، ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ ان کے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے انہیں جو سو عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کن سے لڑو؟ اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، کیا ہو گیا کہ تم ان سے ایسی قوم سے نہیں لڑتے، ان ایسے قوم سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو مکے سے نکالنے کی کوششیں کرتے رہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ جنگ کی ابتدا کی، جنگ کو جو سو جنگ کرنے کے لیے تم کو للکارا، اور کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم یقینی طور پر مومن ہو۔ تو ایسے مشرکوں سے، ایسے کفار سے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہیں کہ ان سے تم لڑو، ان کے ساتھ تم جہاد کرو، ان کے ساتھ تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے انہیں سزا دے گا، انہیں عذاب دے گا، اور یہ کہ جو سو ان کو جو سو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور یہ کہ جو سو تمہارے سینوں کو، مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو مشرک اور کفار جو تھے مکے کے، انہوں نے مسلمانوں کو جو 13 سال تک تکلیفیں دیا، ایذا پہنچائی، اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد جنگ بدر کے وقت میں بھی جو بدر کے میدان میں وہ پڑاؤ ڈال کے تھے، وہاں پر مسلمانوں کو جو سو للکار رہے تھے جنگ کے خاطر، یہاں تک کہ مسلمان بھی مجبور ہو گئے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سو یاد دلا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ کام کیا، انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا، انہوں نے جو سو نبی کو جو سو مکے سے نکالنے کی کوششوں میں لگے رہے، اتنے سارے انہوں نے گناہ کیے۔ تو اب موقع آیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے؟ یعنی تم ان سے لڑو، اور تم جب لڑو گے تو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو جو سو کسی اور کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے، جیسے کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ظلم و زیادتی کی انتہا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو یا کسی اور قوم کو لاتا ہے جن کے ذریعے سے ان کے اوپر ان کو مسلط کر کے پھر ان کو سزا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور یہ تو ان کے خلاف ہے، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف۔ اور پھر ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک ہوگی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا اندر جو غصہ تھا اس کو دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اب اس آیت میں اور اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ ان کے سینوں کے کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو کہا کہ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، اور اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو غیظ و غصہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سو بڑی علم والا، حکمت والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان جو سو 13 سال تک مشرک اور کفاروں کے ہاتھوں میں جو سو پریشان ہوتے رہے، ان کی سزا، ان کی جو سو عذاب کو جو سو برداشت
बर्दाश्त करते रहे, उन लोगों ने जितना जुल्म ज्यादती की उसको बर्दाश्त करते रहे। हालांकि मुसलमानों को कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ वो एक अल्लाह की इबादत करते थे, जिसके वजह से उनके ऊपर उन लोगों ने इतनी सारी मुसीबतें और तकलीफें दिया, उनको इतनी सारी ईजाएं पहुंचाए, यहाँ तक कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को मजबूर किया कि वो मक्का छोड़कर मदीना चले जाए। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो बहुत ज्यादा मायूस हो रहे थे, बहुत ज्यादा आजुर्दा हो रहे थे जब मक्का छोड़ना पड़ रहा था, बल्कि आपने मुखातिब होकर कहा मक्के को, ए मक्का तू मेरे लिए बहुत महबूब है, लेकिन अगर मेरी कौम मुझको मजबूर ना करती तो मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। तो नबी को जो अपना जाए पैदाइश था, जो अपना बर्थ प्लेस था वो, और वो मक्का जो अल्लाह का घर है, उसको छोड़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ पसंद नहीं था। लेकिन जालिमों ने इतना तकलीफें दिया मुसलमानों को, इतना परेशान किया कि मजबूरन जो उनको मक्का छोड़ना पड़ा। तो ये जो 13 साल तक उन लोगों ने परसिक्यूट किया मुसलमानों को, ईमान वालों को, अब इसके बाद जब मौका मिला है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनको तुम उनसे लड़ो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों को ठंडा करे और तुम्हारे गैज़ और गुस्से को दूर करे। यानी जो 13 साल तक तो जो तुमने उनके गुस्से, उनके जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त किया, तुमने सब्र किया, तो अब तुम्हारे लिए वक्त आया है कि तुम उन जो सो उनकी से लड़ाई करो, और अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों पे ने उनको सजा देकर, उनके ऊपर उनकी गिरफ्त कर कर अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों को ठंडा करेगा। यानी जो फितरी बात है कि जब कोई भी इंसान जो सो किसी के जुल्म ज़्यादती से जो सो बर्दाश्त करता है, तो उसके दिल में उसकी बात पकते रहती है, और वो इंतजार करता है कि मेरा जो दुश्मन जो है उसको अल्लाह सजा दे या अल्लाह पकड़ करे, ताकि मेरे सीने को ठंडक हो। तो यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर, और इसमें कोई आपस में इनकी जाती दुश्मनियां तो नहीं थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीन के खातिर इनका मामला था, और दीन के खातिर उनको सताया जा रहा था। तो इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उनसे लड़ो, ताकि अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी मदद करे, और उनको जो तुम्हारे हाथों के जरिए से तो उनको अजाब दे, ताकि तुम्हारे सीने ठंडे हो। अम हसिब तुम, क्या तुमने गुमान कर रखा है, क्या तुमने समझ रखा है, अन तत्रुकु, कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वलम्मा यालमल्लाहु, जब अब जबकि तो अभी तक अल्लाह ताला ने मालूम नहीं की कर लिया, अल्लजीना जहदु मिनकुम, तुम में से जो कौन है जो जिहाद करता है, वलम यत्तखिजु, और जो नहीं बना लेता, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वला रसूलिही, और उसके रसूल के सिवा, वलल मोमिनीना, और मोमिनों के सिवा, वली जतन, राजदार, यानी दूसरों को जो अपना राजदार और अपना करीबी दोस्त नहीं बना लेता। वल्लाहु, और अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम अमल करते हो। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आए थे, और किसको मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सहाबा इकराम को, मुसलमानों को, मोमिनों को, वो मोमिन, वो सहाबा जिन्होंने 13 साल तक जो सो दुश्मन के और मुशरिकों और कुफार के जो सो सितम को सहा, और अपने लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, माल और जान और सब कुछ कुर्बान किया, और जो सो अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी कर रहे हैं, तो भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि अल्लाह ताला तुमको यूं ही छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा, जबकि अल्लाह ताला ने अभी नहीं मालूम कर लिया, यानी पूरी तरीके से अल्लाह ताला ने क्लियर नहीं कर लिया कि कौन है तुम में से जो जिहाद करता है, और कौन है जो कि अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों को छोड़कर दूसरों को अपना गहरा दोस्त नहीं बनाता है। और अल्लाह ताला बाखबर है उस तमाम अमाल से जो कुछ तुम कर रहे हो। यानी ये हरगिज ऐसा ना समझो कि अल्लाह ताला तुम जो कुछ अमल कर चुके हो या कर रहे हो उसके ऊपर अल्लाह ताला तुमको यूं ही छोड़ देगा, नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ये जान लेगा पूरी पूरी तरीके से कि तुम में से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, और कौन है जिसके लिए अल्लाह और उसका रसूल और मोमिन सबसे ज्यादा महबूब है, और उनके अलावा किसी और को अपना करीबी दोस्त और रिश्ते और करीबी जो सो जिगरी दोस्त नहीं बनाते हैं। तो ये क्या है, वला और बरा, जिसको कहा जाता ना, अल्लाह के खातिर मोहब्बत और अल्लाह के खातिर दुश्मनी, तो ये है। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला सहाबा इकराम को मुखातिब होके कह रहे हैं कि अभी तुम इस खुशफहमी में ना रहना, अभी तुम ये ना समझना कि अल्लाह ताला तुमको सीधा छोड़ दो, यानी तुमको अभी नहीं आजमाएगा, तुमको अल्लाह ताला सीधा जन्नत में डाल देगा, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तुमको जरूर ब जरूर आजमाएगा, ताकि अल्लाह जान ले
अब क्या मतलब इसका है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि कौन जन्नती है, कौन किसके दिल में क्या है? अल्लाह तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अल्लाह ताला तो लोगों के सीनों के अंदर जो वसवसे उठते हैं उसको भी जानता है। अल्लाह ताला इंसान के पैदाइश से पहले जानता है कि ये इंसान जो सो ईमान वाला होगा कि काफिर होगा, ये नेक बख्त होगा कि ये बदबख्त होगा। लेकिन मतलब ये है कि अल्लाह ताला वो सारे सबूत वाजे ना कर दे जिसके जरिए से अल्लाह तो पहले से ही जानता है, लेकिन लोग भी जान लें और कल क़यामत में जो सो उनके खिलाफ हो या उनके उनके तायद में जो सो दलीलें साबित हो जाएं, जिसके जरिए से ना वो खुद अपने खिलाफ या अपने बारे में कोई शक रखे और लोग भी जो सो जान ले समझ लें कि जो सो कौन कितने पानी में है। तो मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुमको जरूर व जरूर आजमाएगा और आजमा कर वाजे कर देगा कि कौन है सच्चा ईमान लाने वाला, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, कौन है जो अपने एड़ियों के बल पीछे हट जाता। तो अब यहाँ पर हमारे लिए सोचने की बात क्या है कि जब अल्लाह ताला सहाबा इकराम जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस कुरान को जब नाजिल किया जा रहा, वहां पर जो ईमान वाले हैं उनके साथ हमारा कोई मुकाबला है? कोई रत्ती बराबर भी मुकाबला नहीं है। तो जब उन लोगों को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहा है कि हम तुमको जरूर आजमाएंगे, तो क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप और हम कि हमको अल्लाह नहीं आजमाएगा? क्या हम उनसे ज्यादा आगे के निकल गए हैं कि हम जो करते रहें करें और अल्लाह ताला हमको ना आजमाए? हम सिर्फ जबान से कह दें कि हम ईमान वाले हैं और हम जबान से इकरार कर दें कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हम सीधे जन्नत में चले जाएं? ये काम ख्याली है, ये खुश फहमी है। इसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने और एक इसी तरीके की आयत को कहा कि क्या तुम समझते हो कि तुमने कह दिया कि हम ईमान लाए और अल्लाह ताला तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? हरगिज नहीं, अल्लाह ताला तुमको जरूर व जरूर आजमाएगा। बल्कि कैसे आजमाएगा? तुमको झिंझोड़ के रख देगा, तुमको हिला के रख देगा, जैसे कि हमने पहले कौमों को हिलाया था, उनको झिंझोड़ा था। यहाँ तक कि वो कौम और उसके नबी और उसके रसूल जो थे वो जो सो अल्लाह के सामने कहने लगे, उसकी कहने वो कौम के लोग जो सो एक माने में जो सो उनकी सब्र का इम्तिहान खत्म होने लगा और उन्होंने अपने रसूल के पास आकर शिकायत किया, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद? यानी जब कहा जाता ना कि जब इम्तिहान का एक्सट्रीम हो जाता है, सब्र का पैमाना जब भर जाता है, उस वक्त में कोई रसूल और कोई जो सो कौम उसके रसूल के पास आकर कहती है मता नसरुल्लाह, यानी कब आएगी अल्लाह की मदद? तो फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यकीनन अल्लाह की मदद तो करीब है। तो उन पहली कौमों को जैसे आजमाया तो अल्लाह ताला ने वो क्या कहा कि क्या तुमने ये समझ रखा है, क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुमने कह दिया कि हम ईमान लाए और अल्लाह ताला तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? हरगिज नहीं, तुमको जरूर ब जरूर आजमाएगा। तो जैसे कि अल्लाह ताला पहली कौमों को आजमाया, पहली कौमों के अंबिया को आजमाया और सहाबा इकराम को आजमाया और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सबसे ज्यादा जो आजमाए जाते हैं वो अंबिया और रसूल होते हैं और अंबिया और रसूल में भी सबसे ज्यादा आजमाइश और तकलीफ जो आई है वो मुझ पर आई है। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मतलब है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह अल्लाह के नजदीक कोई कम अहमियत रखते हैं या कोई ऐसी? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाता है जिनसे मोहब्बत रखता है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिसाल ले लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, फिर क्या करा, जहां जितने मर्तबा जितनी अंदाज से आपको आजमाया, जरा अंदाजा करें, यानी उन्होंने जब होश संभाला तो बाप को देखा कि वो कुफ्र में और शिर्क में हैं, बुत बनाते हैं और बुत बेचते हैं। जब बाप को उन्होंने जो सो अल्लाह ने उनको हिदायत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो अपने बाप के सामने तबलीग किया और कहा कि मेरे वालिद, जो कुछ तुम और तुम्हारी कौम करते हैं ये सरी गुमराही है, इसके बाज आ जाओ। तो बाप ने जो सो बेटे को धमकी दिया, कहा कि इब्राहिम तुम बाज नहीं आओगे हमारे पुतों को बुरा भला कहने से, तो हम तुमको या तो शहर बदर कर देंगे या तुमको हम पत्थरे मार मार कर खत्म कर देंगे। देखें, बाप ने बेटे को इस तरीके से कहा। जब देखा कि बाप समझने को नहीं है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप को छोड़कर हिजरत कर गए और कहा कि मैं तुमको सलाम करता हूं और मैं अपना रास्ता अलग करता हूं। जब बाप को छोड़ के निकले तो फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने जो सो आजमाया इस तरीके से कि जो उनको जब बुढ़ापे में जाकर जो सो बेटा हुआ तो उस बेटे और बीवी को कहा कि जो सो इनको ऐसी जगह पर छोड़ दो, यानी मक्के में खाने काबा के पास छोड़ो जहां पर कोई बस्ती नहीं है, वहां पर कोई जो सो क्या कहते हैं फसलें वगैरह भी नहीं होती है, ना कोई खेती बाड़ी होती है वहां पर, ना कोई फसलें होती थी,
बिल्कुल बियाबान और वीरान जगह पर कहा कि इनको छोड़ दो। वो छोड़ के निकलने लगे तो फिर बीवी और बच्चा का, जैसे कि जमजम का पानी का जो मसला बना, बच्चा जब प्यास से रो रहा था तो उस वक्त में जो अल्लाह ताला ने जमजम अता फरमाया। तो मतलब क्या है कि आजमाइश, दूसरी आजमाइश क्या हुई कि बीवी और बच्चे को जो सो वीरान जगह पे छोड़ दो। फिर उसके बाद जब वही बच्चा जब बड़ा होने लगा, थोड़ा सा चलने फिरने लगा, तो कहा कि इसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। फिर उसी तरीके से जब जो सो उनको जो सो नमरूद ने जो सो आग में डालने की कोशिश की, आग में डाला। तो ये सारी आजमाइशें क्यों आई? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह उनके ईमान की में कमजोरी थी? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उनको पहले से ही खलील बनाया था। और अल्लाह ताला अपनों को ही आजमाता है ताकि उनको और बड़े बुलंद मर्तबों में उभारे उनको। तो इसी तरीके से जैसे कहा जाता ना कि सोने को आग में तपाया जाता ताकि उसको कुंदन बनाया जाए। तो ये दुनिया का भी उसूल है, अल्लाह का भी उसूल है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर हम में से किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, तो हरगिज हम नाशुक्री के अल्फाज ना कहें अल्लाह के सामने जो सो कि हम ही को क्यों अल्लाह ताला ये तकलीफ दे रहा है, क्या हम ही थे, क्या हमने कौन सा गुनाह किया। जो अक्सर हम में से जो सो जहालत में लोग जो सो ये अल्फाज निकाल देते हैं जबानों से कि क्या हमको ही ये सजा देना था, क्या हमने कौन सा गुनाह किया, अल्लाह ताला हमको इस तरीके से आजमा रहा है। तो क्या नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अगर ऐसा है तो सहाबा इकराम ने कौन सा गुनाह किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह ताला उनको इस तरीके से आजमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा गुनाह किया था जो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने तरीकों से आजमाया है। तो मतलब क्या है, अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो वो हरगिज जो सो गुनाह की वजह से या सजा के तौर पर नहीं होती है, बल्कि ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करना चाहता है और आपके ईमान को परखना चाहता है और आपके ईमान में जो सो और उभार लाना चाहता है। तो ये वजह होती है और अल्लाह का ये दस्तूर है, ये तरीका है कि अपने ईमान और ईमान वाले बंदों को आजमाता है, जरूर ब जरूर आजमाता है। और अगर अल्लाह के फजल से आपके और हम पर अगर आजमाइश नहीं आ रही है तो ये अल्लाह का फजल है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमको उस तरीके से ना आजमा जैसे कि तूने पहली कौमों को आजमाया है, उस तरीके से ना आजमा जिस तरीके से तूने अंबिया और सालेहीन को आजमाया है, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है, हम कमजोर है। और उसी तरीके से जो सो जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी भी नफ्स को मुकल्लफ नहीं करते उससे ज्यादा जितनी उसकी जितना वो मुकल्लफ है, यानी जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उससे ज्यादा हमारे किसी को नहीं आजमाते। अगर अल्लाह आजमा रहा है इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नजदीक अल्लाह को पता है कि आप इस आजमाइश में पूरे उतर सकते हैं, आपके ऊपर ये आजमाइश को लाना जायज है और मुनासिब है। मिसाल मतलब क्या है, हम छोटे मोटे जो मुसलमान हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला अंबिया और सहाबा इकराम जैसा तो आजमाता नहीं है, उनको कैसे कैसे आजमाया था, कैसे कैसे उनको जो सो तकलीफें और मुसीबतें उनसे अल्लाह ताला ने उनको दो चार किया था, जो कि हम सारे जो सब सीरत की किताबें जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। तो बहरहाल बोलने का मतलब और कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम अल्लाह से आफियत तलब करें कि या अल्लाह हमको मत आजमा, हमको जो है किसी आजमाइश में ना मुब्तला कर, और अगर तूने मुब्तला किया है तो फिर हमें सब्र अता फरमा और हमें कामयाबी अता फरमा कि हम उसमें साबित कदम हो। तो अल्लाह से तो हम आफियत तलब करेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी आजमाइश में डाल दिया तो फिर अल्लाह ही से सब्र भी तलब करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह इस आजमाइश में हमको पूरा उतार। और किसी भी वक्त में किसी भी तरीके से हम अल्लाह की नाशुक्री के अल्फाज हरगिज ना निकाले जहनों से, जबानों से। क्यों कि अगर आपने ना, तो यही तो इम्तिहान है और इसी इम्तिहान में फिर आप फेल हो गए। देखें अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया आपसे, आपको देख, अब मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अपने बेटे को अपने राह में ज़िबा करो, तो अगर वो कहते कि या अल्लाह ये क्या आजमाइश है, मुझको तूने सबसे पहले तो बुढ़ापे में बेटा दिया और फिर मुझको आजमाना चाहता है, अगर ये कहते तो वो फेल हो जाते। लेकिन उन्होंने जब कहा कि ठीक है अल्लाह चाहता है तो मैं अपनी बेटे की कुर्बानी पेश करता हूँ, और जब उन्होंने पेश करने के लिए जब पूरी कोशिश करके अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लिया तो अल्लाह ताला ने कहा, ए इब्राहिम तूने जो सो हमारे आजमाइश को में पूरा उतर गया। अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि अपने उनके बेटे की कुर्बानी ले, बल्कि उनको आजमाना चाहता था। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कामयाब हो गए। तो उसी तरीके से कभी इंसान को अल्लाह ताला हमको आजमाता है तो हम साबित कदम रहें तो फिर अल्लाह ताला हमारे दर्जात में बुलंदी करेगा, हमको फिर उसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा आखिरत में और दुनिया में। तो अगर हमने जो सो वावेला किया, हमने जो सो किसी नाशुक्री का इजहार कर दिया, अपने जबान से कुछ का इकरार कर दिया, या आमाल से, या अपने दिलों में मायूसी, जैसे कि अक्सर होता है
लोगों का हाल क्या होता है कि जब अल्लाह ताला अमन अमान में रखता है, सुकून में रखता है, सेहत में रखता है, तो कभी उसके मुंह से शायद ही छूटे जबान से भी कभी उसका शुक्र अदा करेगा अल्लाह का। लेकिन जब मुसीबत और तकलीफ आती तो या तो जबान से कुछ वावेला करने लग जाता है या अपने अमल से। कोई लोग होते हैं जो नमाजों से भाग जाते हैं, यानी पहले अच्छी तरीके से नमाज रोजा कर रहे होंगे, लेकिन कोई मुसीबत आई, कोई तकलीफ आई, नमाज रोजा छोड़ देते हैं। जब उनसे पूछा जाएगा भाई क्यों, तो कहते हैं भाई क्या फायदा, बोले नमाजें पढ़ के, हमको तो अल्लाह ताला ने इस मुसीबत में डाल दिया, इस तकलीफ में डाल दिया। अरे अल्लाह के बंदो, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी नमाजों को कबूल करके अल्लाह ताला ने तुमको अब देखना चाहता है, तुमको इम्तिहान देना चाहता है कि मेरा बंदा इसमें साबित कदम रहता है कि नहीं। अगर साबित कदम रहता है तो उसको बड़ी दर्जा में इम्तिहान, उसको कामयाबी अता फरमाना चाहता है। तो हम उसके बजाय अगर हम ये छोड़ दें नमाज रोजा और जो सो यानी खुशहाल रहेंगे तो नमाज रोजा पढ़ेंगे, जरा सा मुसीबत आए तो सब छोड़ देंगे और कहेंगे कि क्या फायदा बोले इन नमाजों का रोजे का। हरगिज नहीं। ये तो फिर इंसान अपनी अपनी खबर खुद खोद रहा है कि अपने अपने जो अल्लाह ताला ने आपको उस दर्जे पर लाया, अब उस दर्जे में कामयाब होने के बजाय हम अपने आप को नीचे गिराना चाहते हैं, पस्त होना कराना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, इंसान है, इंसान की बशरी तकाज़ों की वजह से और शैतान के वसवसों की वजह से उसके दिल में ये वसवसे आते हैं कि क्यों मुझ पर ये आजमाइश आ रही है। जब भी ऐसे वसवसे आए तो फिर हम अल्लाह ताला साहबा इकराम की सीरत को देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख लें और अपने आप से पूछे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कम थे? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह ताला ने नहीं आजमाया? कैसे कैसे आजमाया, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों तकलीफों से आजमाया। एक जंग के वक्त में जो एक सहाबी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत किया, कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बुरा हाल है, और अपना कपड़ा उठाया और उठा के बताया कि वो अपने पेट के ऊपर एक पत्थर बांधे हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि ए मुझे फला, बल्कि अपना 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 कुर्ता उठा के दिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो इस तरीके से, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता आप जो सदका खैरात कर देते। आपके घर के अंदर 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता। जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये कहा तो सहाबा इकराम ने पूछ लिया, फिर आप लोगों का गुजारा कैसा होता? कहा कि कुछ खजूर और पानी से हमारा गुजारा हो जाता। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने आजमाया, इस मुसीबतों तकलीफों से आपको आजमाया। तो जब कभी हम पर कोई छोटी मोटी मुसीबत और तकलीफ आ जाए तो हम हरगिज़ हिम्मत ना हारें, हम तो कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सहाबा इकराम का तरीका यही था, जब कभी कोई मुसीबत और तकलीफ आती तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह ने मुझको इस लायक समझा कि मैं इस मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला हूँ, तो अल्लाह ने मुझको इस तकलीफ और तकलीफ मुसीबत में मुब्तला किया है। तो बहरहाल अल्लाह से आफियत तलब करते रहें, लेकिन जब कभी कोई मुसीबत और तकलीफ आती है तो यह अल्लाह की तरफ से है, तो उस पर सबसे पहले तो सब्र करें, फिर अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह हमको इस मुसीबत और तकलीफ में से निकाल दे और हमको सब्र अता फरमा कि हम साबित कदम रहे। क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे ईमान को परखना चाहता है, हमारे दर्जात को बुलंद करना चाहता है। तो ये हम जो सो कहने के लिए तो यकीनन बहुत आसान है, और जब खुशहाल होते हैं तो ज़बानों से शायद कह लेंगे, हम अपने कानों से सुन लेंगे, लेकिन हकीकत तो और कमाल तो उस वक्त में है जब हकीकत में जो सो हम पर वो आजमाइश आ जाए, फिर हम जो सो साबित कदमी का इज़हार करें और सब्र का इज़हार करें। तो यही है कामयाबी, और यही इसीलिए तो कहा कि जो सो नसीहत करते रहो, नसीहत मुसलमानों को, मोमिनों को फ़ायदा देती है। तो जब कभी हम किसी मुसलमान और अपने भाई को देखते हैं, किसी को देखते हैं कि मुसीबत और तकलीफ में है, तो उनको भी हम जो सो सब्र की तलकीन करना चाहिए कि सब्र करो। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि इस्लाम की सबसे पहली शहीद होने वाली खातून है, उनको जब अबू जहल और जो सो तकलीफ दे रहा था, परेशान कर रहा था, एक जगह पर जो सो एक किसी पत्थर वगैरह से जो सो एक सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को जो सो बांध के रखा था, दूसरी जगह पर जो सो हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को बांध के रखा था और उनको तकलीफें देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजरते और क्या कहते, इज़्बुर या आले यासिर, यानी सब्र करो आले यासिर, ए यासिर के घर वालों सब्र करो, तुम्हारा और हमारा मुलाकात जन्नत में होगी। तो ये है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो क्या अबू जहल वगैरह से
उनसे बदला नहीं ले सकते थे, ले सकते थे, लेकिन चूंकि एक आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए यासर के घराने वालों सब्र करो, तुम और तुम्हारी और हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। तो ये सारा का सारा उनके इम्तिहान तो दीन के खातिर थे। हमको अगर अल्लाह ताला किसी इम्तिहान और परेशानी में डालता भी है तो हो सकता है हमारे ही गुनाहों की वजह से हो, और अगर कभी हमारे गुनाहों की वजह से ना भी हो तो फिर हमारी आजमाइश के तौर पर होती है। तो ऐसे वक्तों में जो सो हमको चाहिए कि हम साबित कदमी से उन इम्तिहान में जो सो अल्लाह के सब्र के साथ और अल्लाह की मदद के साथ कामयाब और सुरखुरू हो जाए। मा काना लिल मुशरिकीना, नहीं है मुशरिकों के लिए, यानी मुनासिब और लायक नहीं है मुशरिकों के लिए, अन यामुरु, कि वो आबाद करें मसाजिद अल्लाही, अल्लाह के मस्जिदों को, शाहिदीना अला अनफुसिहिम, जबकि वो खुद गवाही देते हैं अपने नफ्सों के खिलाफ, बिलकुफ्री, कि वो कुफ्र में मुब्तला है। उलाइका हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं जिनके अमाल ज़ाय हो गए, वह फिन नारी, और वो आग में, हुम खालिदून, वो हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, मुशरिकों के लिए जायज़ नहीं, मुनासिब नहीं, लायक नहीं है कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करें या अल्लाह के घरों की देख रेख करें, जबकि वो खुद अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही देते हैं कि वो कुफ्र में हैं। और यही लोग हैं जिनके आमाल को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया, और वो जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमको महफूज रखे। यानी अब कोई खुश ना हो, हम तो इसमें से पाक है, बोले हम तो मुशरिक थोड़ी है, हम तो बोले टनाटन सुन्नी है, हम तो बोले खानदानी मुसलमान है। अल्लाह हम पर रहम करे। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा ईमान कितने पाए का है और हमारे अंदर शिरक है या बिदात है या नहीं है। अल्लाह महफूज रखे, वरना तो हमारे मुल्कों के अंदर अक्सरियत हमारे मुसलमानों में से शिरक के मुर्तकिब है, या कुछ तो पैर से, सर से लेकर पैर तक मुब्तला है। कोई 70% है तो कोई 80% है तो कोई 50% है। शायद ही कोई होंगे जो अपने आप को ये दावा कर सकते हो कि हम शिरक से पाक है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला खास तौर पे मुशरिकीन मक्का जो थे, उन लोगों का हाल क्या था, अगरचे कि वो 360 बुतों की इबादत करते थे, लेकिन साथ में अल्लाह की भी इबादत करते थे। और अल्लाह की इबादत करते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, खाने काबा का हज और उम्रा करते थे, बल्कि खाने काबा के रखवाली थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे। और यहाँ तक कि जो सो जैसे आगे आयतों में आ रहा है, वो जो हाजी आते थे हज और उम्रा करने के लिए, उनकी खिदमत करते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे, और वो फख्र करते थे कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं और हम जो सो अल्लाह के महबूब है और अल्लाह हमसे राजी है। इस तरीके की खुशफहमी में थे। तो अल्लाह ताला उनकी खुशफहमी को चकनाचूर कर रहे हैं और उनके जहनों को साफ करने के लिए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो किसी मुशरिक के लिए जायज़ ही नहीं है, उसके लिए लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह के मस्जिदों को आबाद करे, यानी आबाद करे या उसको देख रेख करे या उसकी हिफाजत करे, ये किसी मुशरिक के लिए जायज़ ही नहीं है। जबकि हालत क्या है कि उन लोगों ने खुद अपने नफ्सों के खिलाफ ये गवाही दे चुके हैं, यानी उनके दिलों को उनको अच्छी तरीके से पता है कि उन लोग वो कुफ्र में है और कुफ्र में मुब्तला है, और उनका हाल ये है कि अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाय कर चुका है और उनका ठिकाना जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये गुनाह किसका है, मा काना लिल मुशरिकीन, मुशरिकों का, यानी अगरचे कि वो मुशरिक है, उसके साथ वो अल्लाह के घर की हिफाजत भी कर रहा है, हाजियों को खाना खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है, सारे नेक अमाल कर रहा है, उसके साथ उसने शिर्क किया है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके सारे अमाल रायगा हो गए और उनको जो सो उनका ठिकाना जहन्नम है और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो क्या हमको डर नहीं होता? क्या हमारे वो मुसलमान जो खास तौर पे डंके के चोट पर हम जो वो कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं, हम ही जो सो सुन्नी है और पता नहीं बाकी पूरे का पता नहीं क्या है, फिर उनके मसाजिद से, उनके अमाल से सरासर खुल्लम खुल्ला शिर्क टपक रहा होता है और जो सो बिदातें टपक रही होती हैं और एलानिया तौर पर जो सो अल्लाह के साथ जो सो कहीं पर नबी को नूरुम मिन नूरुल्लाह कह रहे हैं, कहीं पर जो सो या अली अल मदद कह रहे हैं, कहीं पर या ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं, कहीं पर जो सो या गौस अल मदद कह रहे हैं, कहीं पर जो सो या अल्लाह या मोहम्मद लिख रहे हैं, जो मस्जिदों में लिखा जाता है और हमारे घरों में भी जो तोहरे होते हैं, एक तरफ का लिखा है या अल्लाह, दूसरी तरफ लिखा है या मोहम्मद। तो मतलब क्या है, जैसे कि एक तराजू के दो पल्ले हैं, तो और उस तरीके से दोनों ने जालिमों ने डाल दिया। और पता मतलब क्या है, जबान से तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, यानी एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों को बराबर रखा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बल्कि कहीं कहीं पर दोस्तों एक एक सिक्के के दो रुख जिसे कहते हैं ना, तो उसी तरीके से कार वगैरह के अंदर कोई हैंग करके रखा है,
कोई सिक्का जिसके ऊपर एक तरफ अल्लाह लिखा है, दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अगर आप में कहेंगे कि आप अपने जहन से कह रहे हैं, लेकिन वही जालिमों ने फिर ऐसे ऐसे फिक्रे भी तो कसा है कि वही जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अल्लाह मुस्तवी था अर्श पर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर कहीं पर क्या कहा, हमने एक ऐसे अरब को देखा है जो बिना ऐन का हो, यानी नौज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब बना दिया। तो ये सारे गुनाह और सारे शिरकिया काम भी हम ही करते हैं, ये सारे काम भी हम ही करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि हम जो सो टनाटन सुन्नी हैं, और हम कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं। फिर वो भी जो सो अल्लाह के घरों की इबादत वो रखवाली भी कर रहे होते हैं। कोई किसी मस्जिद का जो सो मतवल्ली है, कोई किसी मस्जिद का रखवाली है, कोई किसी मस्जिद के जो सो साफ सफाई कर रहा है और फखर कर रहा है कि मैं तो फला मस्जिद में इतने सालों से साफ सफाई करता हूँ, फला मस्जिद में मैं तो इतने सालों से मुअज्जिन हूँ, मैं तो इतने सालों से इमाम हूँ, और पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन अगर उनके दिलों में भी, उनके अमाल में भी अगर शिर्क पाया जाता है, कुफ्र पाया जाता है, बिदात पाया जाता है, तो क्या वो इस आयत के मुस्तहिक नहीं होंगे जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी मुशरिक के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो अल्लाह के मस्जिदों को आबाद करे, जबकि वो खुद गवाही दे चुके हैं अपने नफ्सों के बारे में कि वो कुफ्र कर रहे हैं, और उनका हाल ये है कि उनके अमाल को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है, और उनका ठिकाना जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। सारे के सारे नेक अमल करके अगर रात एक खतरा भी अगर हमने शिर्क का मिलाया, वो ऐसे ही है जैसे एक घड़े पर दूध के अंदर किसी ने एक खतरा जहर का मिला दिया, यानी एक खालिस घड़ा जो सो अगर दूध का है, उसमें एक खतरा अगर जहर का मिल जाए, तो क्या आप और हम उसको दूध को पीने पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। कोई अगर कह दे कि भाई वो एक खतरे से क्या होगा, आप कहेंगे कि एक खतरा उस पूरे घड़े पर दूध को तबाह करने, बर्बाद करने के लिए काफी है, मैं मर जाऊंगा भूखा लेकिन वो दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये मेरी हलाकत का जरिया बन सकता है। तो उसी तरीके से अगर हम नमाज और रोजा और ज़कात और हज सब कुछ करें, उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जो हमने शिर्क कर लिया, तो हमारे अमाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बार बार कह दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिस किसी ने शिर्क किया अल्लाह के साथ, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। वह मावाहुन्नार, और उसका ठिकाना आग है, जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला बार बार कहता है, जो कोई अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला जिसको चाहे जो गुनाह चाहे माफ कर दे, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करता। तो मैं कहना ये बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे अंदर हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कि गारंटी के साथ कह सकता है, फखर के साथ कह सकता है कि मैं तो शिर्क से बरी हूँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमको ये फिक्र दे, ये सोच दे, ये समझ दे कि हम अपने अंदर झांके, अपने अकायद में झांके, अपने अमाल में झांके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी शिर्क है। अगर है तो आज और अभी मौका है कि हम उसको निकाल सकते हैं, उससे बाज आ सकते हैं, उससे तौबा कर सकते हैं। वरना हमारी मौत आ गई तो मामला खत्म, तौबा का दरवाजा बंद, और अल्लाह का कानून जो अल्लाह ताला ने कुरान में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल खामोशी के साथ मख्फी रखा है और कल क़यामत में अचानक हमको जो सो इसकी सजा देगा। अल्लाह ताला तो बार बार अपने बंदों को कहता है, वार्न करता है कि खबरदार मेरे साथ शिर्क ना करना, खबरदार मेरे साथ शिर्क ना करना। अगर तुम शिर्क करोगे तो मैं शिर्क तो नहीं माफ करूंगा, इसके अलावा जो चाहे, जो गुनाह चाहे माफ कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कभी भी, आज मुसलमानों का मसला क्या है, हमारे जहनों में ये अच्छी तरीके से ऐसा बिठा दिया गया है कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, यानी जैसे कि आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते, उसी तरीके से हमने ये समझ रखा है कि हम मुसलमान हो गए, हम मुसलमान खानदान में पैदा हो गए तो हम जो से शिर्क कर ही नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है शैतान का, और हमारे बुरे मौलवियों ने हमको इस जहन में इस तरीके से बात डाल दिया है जो कि सरासर झूठ और गलत है। यकीनन शिर्क कर सकता है मोमिन और मुसलमान, और बल्कि करता है और कर रहा है। और खास तौर पे हमारे मुल्कों के, हमारे जो आजकल का जो माहौल है, जिसमें हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गारंटी के साथ कह सकता है कि मैं शिर्क से बरी हूँ, नहीं है। तो बहरहाल हमको डरने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, अपने अमाल को, अपने अमाल में झांकने की जरूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की और परखने की जरूरत है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने जब कभी भी गुनाहों का जिक्र करते तो सबसे पहले गुनाह का जिक्र जो करते वो शिर्क के बारे में होता।
इशराकु बिल्लाह, यानी जहां कहीं भी आप देख लें जितने भी हदीसें हैं जिसमें गुनाहों के बारे में जिक्र है तो सबसे पहला जिक्र शिर्क का आता है। अगर ये होता कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता तो सहाबा किराम, अगर हम अपने बारे में कह रहे हैं तो क्या सहाबा किराम नौजुबिल्लाह शिर्क कर सकते थे? फिर सहाबा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्यों डरा रहे हैं? सबसे पहले जब कभी गुनाहों के से डराते तो कहते कि खबरदार शिर्क से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क करने से बचो। और नबी अल्लाह ताला ने भी कुरान में जब कभी जिक्र किया गुनाहों का तो सबसे पहले नंबर पर शिर्क को बताया है। और आज मुसलमानों की मुसीबत क्या है? हम वो शिर्क किस चिड़िया का नाम है हमको पता नहीं है, शिर्क किन चीजों से होता है हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे मौलवियों ने ना हमको कभी समझाया ना हमको डराया, बल्कि हमको तो इत्मीनान दे दिया कि मुसलमान शिर्क ही नहीं कर सकता है। तो बहरहाल कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम को अल्लाह ताला सही माने में शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद पर कायम रखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करने वाला बनाए, बिदात से बचने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।